Good morning, children. How are you all? I hope everybody is doing great and fine. So, since in our previous video we have finished with our chapter number 8 geography, chapter number 6 geography, that is the major landform of the earth. Now, in this video, we'll start with the new chapter number 8 geography, India, climate, natural vegetation, and wildlife. Okay, so now what we have to do is the main part that is absolutely depending on you, that you have to just cover all the chapters, start revising the chapters from now onwards, because we don't have the sufficient amount of time left. Okay, and second thing I want to tell you that please, whenever your doubt class period comes, you have to join it. Okay, and इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि if you are not joining the doubt class, either you have all the knowledge of this subject or maybe you are not interested to learn more. Okay, so this can be the two aspects which I can suppose or imagine. Okay, so basically you have to join doubt class, and whatever the scenario you are facing difficulties in these chapter, you can ask it there. Okay, so without wasting any time, let us just take out this page number 156, chapter number 8. India, climate, natural vegetation, and wildlife. Okay, weather is the day-to-day changes in our atmosphere in terms of temperature, moisture, wind, sun, cloud, rainfall, and atmospheric pressure. Depending upon these factors, the weather can be sunny, cloudy, rainy, windy, hot and cold, humid too, or dry. Okay, weather conditions vary from place to place. Perhaps it is hot and rainy where you live but at the same time in other parts of the world it could be cloudy and rainy or maybe snowing. ठीक है, so weather की जो conditions हैं वो place to place vary करती हैं, जिसमें it can be possible कि अगर आपके यहाँ पे गर्मी और बारिश हो रही है तो at the same time other parts में क्या हो सकता है, बेसिकली क्या हो सकता है, वेदर जो है क्लाउडी और रेनी हो सकता है या बर्फबारी भी हो सकती है. वेदर चेंजेस इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग एंड क्लाउडी इन द आफ्टरनून. Thus, weather is the atmospheric condition in a particular area over a short period of time. So, what is weather? Weather is the atmospheric condition in which the particular area varies from a short period of time. Now, climate. Climate refers to the weather condition prevalent over a large area for a long period of time. अब वेदर तो जो है बेसिकली कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नोटिस होता है, बट जो क्लाइमेट है वो बेसिकली लॉन्ग टाइम को वेरी करता है. फॉर एग्जांपल जैसे अपनी अभी जो है वी आर हैविंग विंटर, तो विंटर इज़ द क्लाइमेट जिसने लॉन्ग टाइम के सफिशिएंट टाइम के पीरियड के लिए जगह ले रखी है अपने यहाँ सराउंडिंग में. ओके, वी नो दैट क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज कोल्ड वेयर इज द थाट ऑफ चेन्नई इज hot. The climate in Rajasthan is very hot in summer and cold in winter, but in Bengaluru it is pleasant throughout the year. Now you know that weather and climate is not one as the same thing. The countries of the world can be divided into different climatic zones based on the factors such as location, latitude, surface relief, height above the sea level, and atmospheric pressure. Now, climate of India. India being a vast country with huge variation in its relief features does not fit into any of zone. However, it can be divided mainly into 4 climatic zones. India के 4 climatic zones कौन से होते हैं? Alpine, subtropical, tropical and arid. ठीक है, अब सीजन्स ऑफ इंडिया में क्या आएगा? डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अंडर जो है हम 4 सीजन्स को डिनोट कर सकते हैं, दैट इज विंटर, समर, द मॉनसून एंड ऑटम. ओके, बेसिकली जो विंटर है वो नवंबर से फरवरी में लास्ट करता है, जिसमें विंटर टाइम्स जो हैं अपने पूरे इंडिया के पार्ट में शो होते हैं, पाए जाते हैं. मतलब वी कैन फील विंटर अराउंड दिस ऑल पार्ट्स ऑफ आर इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो है थोड़ा सी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो वहाँ पे अपन थोड़ा लो टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं. डाउन साउथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है मॉडरेट इफेक्ट पड़ता है सी की वजह से.
और जो टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन द हायर रेंजेस ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज जो आर्टिक सर्कल्स के जो बेसिकली नियरेस्ट होते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बिल्कुल जमा देने वाली सर्दी हो सकती है। एट टाइम्स इन इंटेंस कोल्ड विंड कॉल्ड कोल्ड वेव्स ग्रिप and the northwestern plains. Normally winters are dry in the northern India and occasional winters shower temperate cyclones. The southern part of however experience the winter showers. समर जो है मार्च अप्रैल मई जून में मेनली डिपेंड होता है, जिसमें इस टाइम जो है सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है वेस्टर्न रीजन्स में। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में शूट अप हो सकता है मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट तक जा सकता है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। हॉट विंड्स नोन एज लू स्वीप द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। अ शॉर्ट लिव डस्टी स्ट्रॉन्ग एंड लोकली कॉल्ड केले-बैसाखी blows across the eastern India and West Bengal, Assam, Odisha and in April and June. It brings मतलब अप्रैल से जून तक के पीरियड में कली बैसाखी जो ब्लोज होती हैं वो ईस्टर्न अपने इंडिया में ब्लोज होती हैं, जैसे ईस्टर्न इंडिया में ब्लोज होती हैं जैसे वेस्टर्न बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ईस्टर्न एरिया में ब्लोज होने के कारण ये जो है ये रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आर प्री मानसून शावर्स इन केरला कॉल मैंगो शावर्स, जिससे वो अपने जो है बेसिकली कर्नाटका में जो ये शावर्स आते हैं उसको चेरी ब्लॉसम को जो कॉफ़ी के लिए कल्टीवेट करने के लिए भी बहुत अच्छा सीज़न हो जाता है। और साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में बिटवीन जून एंड सितंबर में लास्ट करता है, जिसमें एक्सपीरियंस क्या होता है रेनी सीजन का ड्यू टू द मानसून विंड्स एंड मानसून विंड्स आर कॉल्ड सीजनल विंड्स ऑल्सो। दीज मानसून विंड्स कम इन अरेबिक वर्ड मौसम which means weather. The moisture laden winds from the sea known as the southwest monsoon winds blow from over the Indian landmass and bring rain. और अब इंडियन पेनिनसुला ने इसको दो ब्रांच में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एन अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकंड इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है एक्सटेंसिव रेनफॉल को वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स में जो है प्रोड्यूस करती है, जिसमें बे ऑफ बंगाल जो है रेनफॉल कहाँ प्रोड्यूस करता है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इट गेट्स डिफ्लिएटेड द गंगा वैली ब्रिंगिंग रेन। इंडिया रिसीव 60% ऑफ इट्स टोटल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब रिट्रीटिंग मानसून सीजन क्या है? बाय सेप्टेम्बर द विंड रिवर्स द डायरेक्शन, दे स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथवर्ड्स, ठीक है। तो जो सितंबर में है जो बेसिकली जो अपनी विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो क्या करती हैं साउथवर्ड्स की तरफ जो है ब्लो करने लग जाती हैं फ्रॉम लैंड टू सी, जिससे क्या होता है जो सी का जो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, जो सी टेम्परेचर होता है वो वार्मर हो जाता है, जिसमें ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ये बेसिकली मॉइस्चर पैदा करती हैं जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न कोस्ट में रेन यानी बारिश को पैदा करता है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई आफ्टर द मानसून रेन एंड द वेदर इज़ अनकम्फर्टेबल। और आपने देखा होगा कि मानसून रेन के बाद जो है बेसिकली क्या हो जाता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर आ जाता है अपने सराउंडिंग्स में और थोड़ा सा चिपचिपा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। दिस समटाइम्स रिफर टू एज द अक्टूबर हीट ऑल्सो। In October and November, there is a gap between the rainy season and winter. It is during the season that cyclones form over the Bay of Bengal. A cyclone is a huge storm that originate at the sea in the tropical zone. Cyclone आपने देखा होगा ऐसे तूफान आता है, ठीक है। तो वो बेसिकली वेरी करता है अक्टूबर से नवंबर में। जो साइक्लोन कंडीशंस हैं वो मेडिटेरियन सी में ज़्यादा मतलब ट्रैवल करती हैं ईस्ट वर्ड से ओवर वेस्ट एशिया की तरफ, जिसमें जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे कि आप टेम्परेट साइक्लोन्स देख सकते हो जो रेन एंड स्नो कॉज करता है किसमें, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब में, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। और ये रेंस क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं किसके लिए, रेबी क्रॉप्स के लिए। Okay, distribution of rainfall. From the map showing the distribution of rainfall, you can see that the amount of rainfall is not the same everywhere in India. अब आप देख सकते हैं मैप में
कि बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपना रेनफॉल ऑफ मैप में वो बेसिकली हर जगह सेम नहीं है। यहाँ पे अब ये सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं हमारे डिजिट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं 20 है, चाहे 20 कोई 40 है, कोई 60 है, तो ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में जो है रेनफॉल नहीं गिर रही है। Monsoon winds are irregular. These winds can cause floods in one part and drought in the another part simultaneously. ठीक है, अब मानसून विंड्स जो हैं इरेगुलर होती है, मतलब कोई इनका फिक्स नहीं होता। कई जगह तो ये इतनी बारिश पड़ सकती है कि बाढ़ आ जाए, कई जगह इतना भी बारिश नहीं होती कि बिल्कुल वहाँ पे सूखा हो जाता है, बिल्कुल ड्रॉट हो जाता है। और चिरम्बंजी एंड मोसिरम इन मेघालय हैव मोर देन 800 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल and places like Jaisalmer in Rajasthan receive lesser rainfall, less than 12 centimeter. The western coastal plains and the northeastern region receive more than 200 centimeter of rainfall, while Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana bordering it receive rainfall less than 60 centimeter. The Deccan Plateau also receive less rainfall. Tamil Nadu receive less rainfall from the southwest monsoon winds. November and January is the rainy season here. On an average, the country received the annual rainfall of 120 centimeter. Okay, so now from this natural vegetation of India, we'll continue in the next video. So till then, you just read it just go with this chapter till here now, and we'll continue in our next class. Okay. So till then, you all take care, children. Bye bye.